Bismillahirrahmanirrahim. The value of N and L for the last electron of phosphorus. Phosphorus का एटॉमिक नंबर कितना है? 15 है. तो ये हो जाएगा नियान and 3s2 3px1 3py1 and 3pz1. Understand? या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 3p3 तो ये 3 जो है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं और इजीम्यूथल क्वांटम नंबर फॉर p इज, और ये 1 क्यों होता है पता है? हाँ, p के लिए l की वैल्यू 1 क्यों होती है? हाँ, why is L is 1 for p orbital? p के अंदर एक नोड होता है. There is one node in p orbital. इस वजह से we say that L is equal to 1. इस ऑर्बिटल में no node, हाँ, so L is equal to 0. अच्छा, उस बचे आवाज दर्जी ठीक सो बचे. अच्छा, नो पर इस ऑर्बिटल के नोड निश्चित है. मम्मा का कवाई छे L is equal to 0. D में 2 नोड्स होते हैं और इसमें 3 नोड्स होते हैं. तो L represents the number of nodes. Question number 83. The number of spectral line produced. देखो आपके साथ n is equal to 3 है, फिर 4 है, 5, 6 और 7. ये कितने ऑर्बिट हो गए? 1 2 3 4 5. तो इसका फार्मूला है n into n minus 1 divided by 2. तो हो जाएगा 5 into 5 minus 1 by 2. 5 into 4 divided by 2 is equal to 10. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ये फार्मूला है, स्पेक्ट्रल लाइन का फार्मूला है. अगर आपको आर मालूम है कि 3 4 5 और 6 और 7 ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है, तो हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रांजिशन? 5 ऑर्बिट. And 5 minus n, 420, and you get 10 answer. Question number 84. The non-ideal behavior. इतना जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन, समझ आ गई वो. The non-ideal behavior result chiefly from the intermolecular attractive forces and finite volume because the gas molecule possess a small volume. They occupy a little volume. So option number C is correct. Question number 85. The intermolecular forces between methane, silane, ये सारे non-polar हैं. अच्छा, all of them have dipole moment equal to 0. तो ये सारे क्या हैं? Non-polar. तो non-polar में कौन सी forces होती है? Our London forces are directly proportional to the साइज. तो साइज ज्यादा होगा तो लंदन फोर्सेस ज्यादा होंगी और बॉइलिंग पॉइंट उनका ज्यादा होगा. तो मीथेन का सबसे कम होगा, साइलेन का उससे ज्यादा होगा, जर्मेन का उससे ज्यादा होगा, स्टेनेन का उससे ज्यादा होगा. Which one of the following is not true about ideal gas? They don't exert pressure. They don't. ये गलत है. आइडियल गैस का ज्यादा प्रेशर होता है कि रियल गैस ज्यादा प्रेशर डालते हैं? पता है, आइडियल गैस exert more pressure. Why? Because there are no attractive forces between them and they are free to exert pressure on the walls of the container, while the real gases molecules, they do attract one another, so there is decrease in the pressure. Question number 87.
What is the pressure of 5 liter per mole ideal gas? Temperature is 22 degrees centigrade. What is the pressure of 5 liter per mole ideal gas at a temperature of 22 degrees centigrade? हाँ क्या 27 है ना? तो मैंने क्या बोला? मैंने 24 बोले। डेर गट केमिस्ट्रान न शुई ऐसे डेर तकड़ा न शुई। हाँ बहुत गलतियां पकड़ते हो तुम टीचर। आप अभी तक आपको ये समझ नहीं आई है कि ये गलती नहीं होती है। अच्छा, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला आपने इस्तेमाल किया था? PV इज इक्वल टू, तो आपको वॉल्यूम भी गिवन है, N भी गिवन है, R भी गिवन है, T भी गिवन है ना? तो आप प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला एंड ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन आइडियल गैस? What is the molecular mass of an ideal gas with a pressure of 1 atmosphere and density is equal to 10 gram per liter? So PM is equal to DRT. PM is equal to DRT. So this is the formula and you will get option number D. Question number 89. Which one of the following is true about compressibility of a real gas? तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, रियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो इस तरह होता है ना? तो Z इज इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैस। दिस इज फॉर आइडियल गैस। फॉर रियल गैस इट मे बी लेस देन 1 और इट मे बी ग्रेटर देन 1 एंड कैन इट बी 1? Yes, yes, look, no. Even a real gas under certain condition will behave ideally. Look at this point. This is the point where the two defective or faulty assumptions of the kinetic molecular theory, they cancel the effect of one another. The attractive forces decrease the value of Z, but the finite volume makes it less compressible, which is responsible for increase in the value of Z. So they are fighting each other and they become equal. And that's why here the gas behaves ideally. Question number 89 में option number D is correct है. Question number 90. What is the pressure of hydrogen with a compressibility of 0.6 mole, volume 5 liter per mole at 26 degrees centigrade? You know that Z is equal to PV divided by nRT. You are given volume, you are given N, you are given R, temperature. Z is also given. Z is, so put the values and pressure will come out to be 2.88 atmosphere or 2.9 atmosphere. Option number A is correct. Question number 91. Select the incorrect statement from the following option. आप option number C को देखें. Two different pure substances have the same. Two different pure substances have the same melting. ये गलत है कि ठीक है? हाँ, कभी कभी ठीक भी हो सकता है। हाँ हाँ, कभी कभी इधर ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ना, बाकी के मुकाबले में ये करेक्ट ऑप्शन। बट इफ यू हैव टू ऑप्टिकल आइसोमर, टू एनेंटियोमर्स, दे हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट, दे मे हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट। एनेंटियोमर्स के मेल्टिंग पॉइंट सेम हो सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के, लेकिन आमतौर पर जो जर्नल बात हम करते हैं ना, तो डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। 92. The number of atom in a unit cell of sodium, बस ये याद रखें। अच्छा, जहां पर BCC स्ट्रक्चर होगा, कौन सा स्ट्रक्चर होगा? BCC। तो इसके यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल 2 होंगे
अगर FCC स्ट्रक्चर है तो नंबर ऑफ पार्टिकल 4 होंगे, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा तो फिर 1 होगा। लेकिन इसमें एक बात याद रखें, ये जो मैंने ड्रा किया है ना टेबल, दिस इज फॉर प्योर एलिमेंट्स, दिस इज फॉर प्योर। लेकिन अगर आपके साथ कंपाउंड हो, क्या हो, कंपाउंड, जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, तो फिर इसका जो FCC स्ट्रक्चर होगा ना, तो फिर इसके एक यूनिट सेल में 4 सोडियम आयन होते हैं और 4 इसमें क्लोराइड आयन होंगे। तो टोटल आयन्स इसमें कितने होंगे, 8 आयन्स होंगे, क्योंकि ये प्योर एलिमेंट नहीं है, इट इज अ कंपाउंड। सो इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड ईच यूनिट सेल कंटेन 8 पार्टिकल, दैट इज 4 पॉजिटिव आयन एंड 4 आर नेगेटिव आयन। तो ये जरा टेक्निकल बात है और अक्सर बच्चों की इसकी समझ नहीं आती है। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 92 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट वेपर प्रेशर? जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। ग्लाइकोल, ग्लाइकोल जानते हो ना, ग्लाइकोल जानते हो? अच्छा, इसमें आप देखिए बेटा, विच वन इज ग्लाइकोल इन दोनों? हाँ, फर्स्ट वन नहीं, दोनों। ग्लाइकोल डाइहाइड्रिक अल्कोहल को कहते हैं, बोथ आर ग्लाइकोल, राइट। और रिमेंबर, चूंकि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक OH होता है और इसमें 2, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के मुकाबले में ज्यादा होगा। इथाइलिन ग्लाइकोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज अबाउट 197 डिग्री सेंटीग्रेड, और ग्लिसरीन का जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है वो 290 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो OH ग्रुप ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है। अक्सर बच्चों को ये गलतफहमी होती है ना कि वाटर में बस बॉइलिंग वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पता नहीं होता कि ग्लाइकोल में भी होते हैं, अल्कोहल में भी होते हैं, एमाइंस में भी होते हैं, फिनोल्स में भी होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होते हैं, एमाइड्स में भी होते हैं। आप तो सिर्फ बुक को फॉलो करते हैं ना, बुक के अलावा इधर उधर और चीजों को भी, जिस जिस चीज में OH ग्रुप होगा, OH बॉन्ड होगा, NH बॉन्ड होगा, HF बॉन्ड होगा, उन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होंगे। अंडरस्टैंड? और ये भी शायद आपको पता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं। इंट्रा और इसकी 2 किस्में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 95, which one of the following represents vaporization when a liquid changes into vapors? Change of a liquid to vapor is called 94 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अच्छा, चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड वेपोराइजेशन। Vaporization is the process of conversion of a liquid into gas on heating, and without heating it is called evaporation. Question number 96, 1 psi pound per square inch, pound per square inch is equal to how many kilopascal? How many kilopascal? तो आपको पता है कि 14.7 psi is equal to 1 atmosphere. Is it okay? And 1 atmosphere is 1.01325 pascals. हाँ? अच्छा, अगर मैं इससे किलो पास्कल बनाऊंगा, इसको 1000 पर डिवाइड करूंगा, तो हो जाएगा 101,325 किलो पास्कल इज इक्वल टू 14.7 psi. तो 1 psi विल बी इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालें, इट विल बी 94. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. Question number 97.
if the volume of a confined gas किसको कहते हैं? When you enclose a gas within a closed container at constant temperature, what would be observed in the pressure? वॉल्यूम को अगर आप डबल करें तो वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? दैट बिकम्स हाफ। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, a helium filled during volume 2.75 liter at 20, the volume of the balloon decreases to this much, what will be the pressure? तो टेम्परेचर को आप केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये फार्मूला आप लगाएंगे तो T2 आपके साथ आएगा तकरीबन 262 केल्विन। तो जब आप इसे सेंटीग्रेड बनाएंगे तो 262 से 273 को माइनस, तो अप्रॉक्सीमेटली माइनस 10.8 जवाब आएगा। दिस इज नॉट बट इट इज सिंपली चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में आप जब कैलकुलेट करते हैं ना टेम्परेचर या फाइनल वॉल्यूम को, उसका तरीका ये होगा कि आपने टेम्परेचर को केल्विन स्केल में जरूर कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 99, if the non-volatile soluble impurities contaminate the fluid, अगर आप कोई नॉन वोलेटाइल चीज सॉल्वेंट के अंदर डालें, पानी के अंदर डालें, जिस तरह पानी में हम नमक डालते हैं या चीनी डालते हैं, तो ये क्या करेगा? उसके वेपर प्रेशर को कम करेगा, और जब वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इलिवेशन का करता है, ये आपने सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा, elevation of boiling point. The vapor pressure of a liquid vapor pressure of a liquid depends on the temperature of the liquid, amount of the liquid, surface area. It only depends on the temperature. 101. Which one of the following changes would increase the vapor pressure of a liquid? Vapor pressure किस चीज से ज्यादा होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओनली टेम्परेचर। ये पहले गुजर भी गया ना, यही सवाल पहले गुजर चुका है। 100 और 100 तकरीबन एक जैसे। 102. Which one of the following phase changes are endothermic? Melting, vaporization, sublimation. ये सारे जो है ना, they are endothermic, in which heat is required. Evaporation is also endothermic. Which substance can be melting without breaking a chemical bond? आप जरा गौर करें, अक्सर जो आपके पास अयानिक कंपाउंड होता है, कौन सा कंपाउंड? हाँ, आप अगर उसको ब्रिक करते हैं, आप अगर उसको मेल्ट करते हैं, आप अगर उसकी मेल्टिंग करते हैं, तो यू हैव टू इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ अयोनिक बॉन्ड्स। इसी तरह अगर आपके साथ कोई कोवेलेंट सॉलिड है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल सिलिका है, सिलिकॉन डाई ऑक्साइड है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, तो इनको जब आप मेल्ट करेंगे तो इसमें कार्बन कार्बन जो या सिलिकॉन ऑक्सीजन जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सो दे आर ब्रोकन डाउन। अयानिक और प्योर जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, उसकी ब्रेकिंग के दौरान द केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन। विच बॉन्ड्स आर ब्रोकन? केमिकल। लेकिन अगर आपके साथ कोई मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कौन सा सॉलिड है? मॉलिक्यूलर, तो फिर सिर्फ मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुदा होंगे, तो उनके अंदर फिर वांडरवाल फोर्सेस ब्रेक होती हैं। जिस तरह आपके साथ नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन जानते हो ना? हाँ, ये इंसेक्ट को किल करता है, इट किल्स द इंसेक्ट। नेफ्थलीन C10 और H8। अक्सर बच्चे जो है ना, उनको ये पता होता है कि इस
मालिक्यूल का स्ट्रक्चर ये है, लेकिन ये दो मालिक्यूलर फार्मूला होते हैं वो बच्चों को पता नहीं होता। तो ये भी बाज़ औक़ात आपसे पूछा जाता है। ये जो मैं एरो डाल रहा हूँ ना, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच, यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं होता। अब देखो बेटा, आपके साथ फिनोल है, क्या है? तो आपको तो ये पता है ना कि फिनोल में इस तरह एक बास्केट होता है और उसके साथ OH अटैच होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो फिर अक्सर बच्चों को पता नहीं होता। ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है कि C6H5OH है कि C6H6O है। इन तीनों में कौन सा फार्मूला ठीक? हाँ, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। यहाँ पर H मैंने इसके साथ कंबाइन करके लिखा है ना, तो ये दोनों ठीक है। दिस फार्मूला इज नॉट करेक्ट फार्मूला। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन जब आपने इसका प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो उस वक्त आप उसको देखकर फिर जरा परेशान हो जाते। तो इन चीजों को आप देख रहे, ये देखो ना, टेट्राहेड्रॉन लटक रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। 103 में ऑप्शन नंबर सी है। अच्छा, नेफ्थलीन जो है ना, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। कौन सा सॉलिड है? मॉलिक्यूलर। तो एक नेफ्थलीन इधर होगा, एक इसके साथ इधर लगा होगा, एक इधर लगा होगा, एक इधर, एंड दे आर बाउंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ लंदन फोर्सेस। क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, नॉन ऑक्सीजनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर नॉन पोलर। नॉन पोलर मीन लेस पोलर। नॉन पोलर मीन जिस चीज की पोलरिटी बहुत कम हो उसको भी नॉन पोलर कहते हैं। 104, the coordination number in body centered simple cubic and face centered cubic will be how much? तो एक बात आप याद रखें, यहां पर थोड़ी सी वजाहत नहीं है, थोड़ी सी वजाहत क्वेश्चन में नहीं है, उसको आप समझ लें। अगर वो कंपाउंड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? इस तरह सोडियम क्लोराइड का FCC स्ट्रक्चर है ना, बट इट इज अ कंपाउंड। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो सोडियम का भी 6 होता है और क्लोराइड का भी 6 होता है। लेकिन अगर प्योर एलिमेंट हो, कौन सा एलिमेंट हो? प्योर एलिमेंट, और उसका FCC स्ट्रक्चर हो, कौन सा स्ट्रक्चर हो? FCC स्ट्रक्चर हो, उसको क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। CCP और FCC एक किस्म के स्ट्रक्चर को कहते हैं। आपने पढ़ा है कभी ये कि CCP और FCC? हाँ, आपके बुक में सेंटेंस लिखा है कि सोडियम क्लोराइड है FCC या क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, दोनों बातें हैं उसमें। तो अगर आपके साथ कोई प्योर एलिमेंट हो, कोई प्योर मेटल हो, तो फिर उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ना वो 12 होता है। कितना होता है? 12। इफ एन एलिमेंट हैज FCC स्ट्रक्चर देन द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12। और हर एटम जो है उसके गिर्द 6 एटम जो है ना, कितने एटम? 6 एटम एक लेयर में, विद इन द सेम लेयर 6 एटम आर सराउंडिंग दिस एटम, and 3 atoms are occupying the position above this particle in the upper layer and 3 from the downward layer. So 3 are above and 3 are below and 6 are in the same plane. So coordination number will be 12. तो 104 में ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, चूंकि he is not talking about sodium chloride, he is talking about an element which has a body centered cubic, face centered cubic and simple cubic structure. You get the point? 105, if the absolute temperature is doubled, the pressure is decreases. If the absolute temperature is double and the pressure is decreased 4 times, तो प्रेशर को अगर आप 4 टाइम कम करेंगे तो वॉल्यूम 4 टाइम ज्यादा हो। तो 4 टाइम द वॉल्यूम इंक्रीज 4 टाइम बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर।
और फिर आप टेम्परेचर को डबल करेंगे तो फिर ये डबल हो जाएगा। तो पहले 4 टाइम्स ज्यादा होगा फिर डबल हो जाएगा। तो 4 को डबल करने से क्या जवाब आते हैं? सो देयर विल बी अ चेंज ऑफ 8। ऑप्शन नंबर सी 106। 1 liter balloon is filled with helium 1.28 mass. The balloon is squeezed to 0.4 liter. वॉल्यूम जब हाफ हो जाएगा तो प्रेशर डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बॉयलर। 107 on the furthermore exothermic lattice energy. Remember, lattice energy is directly proportional to Q1, charge on the positive ion multiplied by charge on the negative ion divided by size of the positive ion plus size of the negative ion. तो आप देखें ना, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, इस पर भी +2 चार्ज है ऑक्सीजन। लेकिन इन दोनों में चूंकि कैल्शियम का साइज बड़ा है, इसका रेडियस बड़ा है, तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। मैग्नीशियम का साइज छोटा होने की वजह से इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। And why magnesium chloride has low structure? Because the size of the chlorine is quite big. सोडियम क्लोराइड का तो लेटेस्ट एनर्जी और भी कम होगी, बिकॉज सोडियम हैज वन चार्ज एंड क्लोराइड हैज आल्सो 1 चार्ज। 108 कैडमियम सल्फाइड और जिंक ऑक्साइड आर हेक्सागोनल। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके कोर्स में है ना, इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। इसका कौन सा स्ट्रक्चर होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का कौन सा स्ट्रक्चर होता है? क्यूबिक। ये आपके बुक में एग्जाम्पल है। आमतौर पर जो आइसोमॉर्फिक चीजें होती है उनकी एटॉमिक रेशो सेम होती है, लेकिन जरूरी नहीं होता। इस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी 1:1 है, बट इट हैज different structure. Question number 109. Which response include only those compounds that can exhibit hydrogen? यानी वो कंपाउंड बताएं, वो ऑप्शन बताएं जिसमें सबके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड हो। तो ऑप्शन नंबर डी। एमाइंस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एचएफ में भी। सिर्फ टर्शरी अमाइन जो होते हैं ना, टर्शरी एमाइन, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। इट हैज नो हाइड्रोजन बॉन्ड, टर्शरी एमाइन। लेकिन ये भी वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। टर्शरी एमाइन कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद अ वाटर मॉलिक्यूल। इनमें आपस में नहीं होते हैं, लेकिन पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। 110 which probably has the lowest boiling point at 1 atmospheric pressure। आप अगर देखें ना, HF है, HCl है, HBr है और हमारे पास HI है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो ट्रेंड होता है वो इस तरह होता है। अंडरस्टैंड? तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट HBr का क्यों इससे ज्यादा है? बिकॉज इट हैज बिगर साइज एंड इट हैज स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस। और इसका साइज इससे बड़ा है तो उसमें उससे भी स्ट्रॉन्गर लंडन फोर्सेस है। अंडरस्टैंड? सो द बॉइलिंग पॉइंट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड लंडन फोर्सेस। So among these three, the highest boiling point is shown by hydrogen iodide because of having bigger size and stronger London forces. But being a very small molecule, HF has negligible London forces. It has London forces, but the effect of London force is not very dominant. So which force makes its boiling point very high? Hydrogen bonding. So सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? HCl का होगा। 111। अच्छा, अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूं ना कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट किसका हाईएस्ट होगा? ईथर का, वाटर का। अंडरस्टैंड? और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? फॉर एग्जांपल कि आयोडीन का
तो पता है सारे लोग वाटर को टिक कर दे, हालांकि आयोडीन इज ए सॉलिड, आयोडीन इज अ सॉलिड, एंड although it has London forces, but these London forces are so much strong that they supersede the hydrogen bonding. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरह जब हम बच्चों से पूछते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, वाटर का ज्यादा है कि डाइमीथाइल ईथर का ज्यादा है, अंडरस्टैंड, कि इथाइल अल्कोहल का ज्यादा है कि मरकरी का ज्यादा है, तो पता है फिर सारे वाटर को टिक करते हैं, हालांकि मरकरी के अंदर देयर आर स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड्स, so it has very high boiling point. 10111, which one of the following substance can be melted without breaking? इसका मतलब यह है कि your solid is molecular solid, it is neither covalent solid nor it is ionic, because in ionic compounds and in covalent solid you have to break the covalent bonds in order to melt them, but molecular solid require breaking of London forces. So sulfur dioxide, it is a molecular solid, molecular compound है. Remember, covalent compound and molecular compound have different meanings. Although SO2 is also covalent, but it makes molecules. And when we talk about a covalent solid, it means it does not have molecules. All the crystal represents a single macro molecule in case of covalent solid. 112, which one of the following compound would be expected to have highest melting point? तो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि जब आयंस का साइज छोटा होगा तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी, और आमतौर पर जिस कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। हालांकि ये बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली लेटेस्ट एनर्जी एंड मेल्टिंग पॉइंट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू वन अनदर। और एक चीज जो है पदे खबर बच्चे पूछेगा ना, मैं कुछ बताना चाहता था, मैं भूल गया, वो बात मैं भूल गया। Which one of the following derivatives of ethane has highest वेपर प्रेशर, हाईएस्ट? अच्छा, ये बात मैं आपको बताना चाहता था। आयोनिक कैरेक्टर जानते हो ना, आयोनिक कैरेक्टर ऑफ अ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ पॉजिटिव आयन, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयन जितना छोटा होगा आपका कंपाउंड मोर आयोनिक होगा, मोर और मोर स्टेबल भी होगा, और मोर स्टेबल भी होगा। और साइज ऑफ केटायन जितना बड़ा होगा योर कंपाउंड विल बी मोर आयोनिक एंड मोर स्टेबल, बिकॉज कोवेलेंट कैरेक्टर लीड्स टू डिक्रीज इन द स्टेबिलिटी एंड लीड्स टू डिक्रीज इन द मेल्टिंग पॉइंट्स। 113, which of the following derivative of ethane has highest वेपर प्रेशर? तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? जिसके अंदर लंडन फोर्स, ये सारे नॉन पोलर कंपाउंड है, ये सारे नॉन पोलर है, तो फिर जिसका साइज कम होगा तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ना, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी। 114, when a substance move from a solid to liquid state, the kinetic energy of the molecule decreases। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, उसने गलत बात पूछी है कि गलत कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विच में बिटवीन ऑल काइंड ऑफ एटम, सब चीजों में जो फोर्सेज होती हैं तो वो सारी लंडन फोर्सेज होती हैं। कौन सी फोर्सेज होती हैं? लंडन। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन लंडन फोर्स होना चाहिए, वांडरवाल तो सबको कहते हैं ना, वांडरवाल को टोल होता वही, लंडन फोर्स आप लिखें, वांडरवाल फोर्स की जगह आप लिखें लंडन फोर्स। Forces of attraction which may be present between all kind of molecule, they are called London। क्या बात है बेटा? किसका?
115 में ये जो कंपाउंड है ना, ये वाला, आप इसकी बात कर रहे हैं ना, कौन सा? Forces of attraction which may be present between all kind of atoms and molecules. हाँ, डायपोल 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 और इंड्यूस। अच्छा, डायपोल और इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन जो है ना, वो हर जगह पर नहीं होते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि व्हाट इज मेंट बाय डायपोल एंड इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। आई डोंट, आई एम श्योर यू विल नॉट बी नोइंग। आपने नाम सुना है बट यू डोंट नो। अच्छा, लुक, what is meant by डायपोल? क्या आपने कहा? डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। ये फॉर एग्जांपल आपके साथ पोलर मॉलिक्यूल है ना, तो इसमें डायपोल है, लेकिन इसमें तो डायपोल नहीं है, तो इसमें इंड्यूस डायपोल होगा और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फॉर अ मोमेंट इट गेट्स डिस्टर्ब्ड, राइट, और इसका एक साइड नेगेटिव और दूसरा साइड जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो फिर इस नॉन पोलर और इस पोलर के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। पता था आपको पहले? अच्छा, गुड। अच्छा, तो ये सी ऑप्शन में करेक्ट नाम क्या होना चाहिए? देयर शुड बी अ लंडन फोर्स। तो फिर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, किस चीज में लंडन फोर्स नहीं होता? मैं क्वेश्चन सुने, किस चीज में लंडन फोर्स नहीं होता है? वाटर में, ईथर में, आयोडीन में, सोडियम क्लोराइड में? आयोडीन में तो लंडन ही होता है, लंडन फोर्स है। वाटर में लंडन फोर्स नहीं होता। वाटर के अंदर लंडन फोर्स भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। HCl में लंडन फोर्स भी होता है, डायपोल डायपोल भी होता है। सोडियम क्लोराइड, हाँ, अच्छा, सोडियम क्लोराइड में भी लंडन फोर्स होता है। London forces are present in all type of substances, whether it is ionic or covalent or polar or non-polar. 115 में C option। 116, which one of the following has maximum mass? तो आप मास कैलकुलेट करें, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा है। ये असल में 2 मोल नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 मोल इज 44 ग्राम एंड 2 मोल विल बी 88 ग्राम, राइट। कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, 117, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस दिस, द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी। तो देखो 20 ग्राम जो है ना, 20 ग्राम, इससे मोल अगर आप बनाए, इसका 100 वेट है, तो 20 बाई 100 मीन 1/5, 1/5। अच्छा, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका मास 44, तो 44 डिवाइडेड बाई 5 इज 4.4, 8.8। सी जवाब की। कौन सा ऑप्शन? हाँ, मेरे क्वेश्चन मैंने गलत किया, डबल क्वेश्चन तक हो रहा हूँ, जवाब डबल क्वेश्चन लिखा। वेयर इज द डस्ट? जितना आप आसानी से टीचर की गलती को या मिस प्रिंटिंग को समझते हैं, काश आप इतना कंसेप्ट को भी समझ लें, कितनी अच्छी बात होती। हर पॉइंट जो है ना बेटा, हर पॉइंट आपके बुक में सब कुछ है। ये बाद लोग जो है, मैं नाम नहीं लेता, फलानी जगह टेस्ट दिया और उधर दिया और इधर दिया और ये सीरीज और वो सीरीज, जितना ज्यादा बंदा मुख्तलिफ किताबें पढ़ेगा वो ज्यादा अपने आप को कंफ्यूज करेगा। अक्सर अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे और काबिल, लायक, अंडरस्टैंड, और वो खराब हो जाते हैं इस वजह से,
कि वो इररिलेवेंट चीजें देखते हैं। 118 देखो, आप अगर 10-15 टेस्ट ही देख लें, कुछ भी ना देखें, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाए, क्योंकि यही टेस्ट जो है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। सिर्फ हम वर्डिंग चेंज करते हैं और सिर्फ हम एग्जाम्पल चेंज करते हैं, कंसेप्ट तो वही होता है ना। साथ साथ अगर आपको मौका मिले तो सैटरडे के टेस्ट जो है ना, वो भी सॉल्व करें 4-5, तो पूरे कोर्स में से गिवन होते हैं। 4-5 टेस्ट आप उसको भी सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 118, the volume of sulfur dioxide gas at STP is produced by heating 6.4 ग्राम of sulfur। तो 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर मीन इसको 32 पर डिवाइड करें ना, तो आपको मोल्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? मोल्स। अच्छा, और जितने मोल सल्फर के होंगे, फर्ज करो ये x मोल आ गए, तो आपके साथ सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे? x मोल, बिकॉज 1 मोल सल्फर गिव्स 1 मोल ऑफ सल्फर, तो x मोल विल गिव x मोल। अच्छा, वॉल्यूम कितना होगा? x मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 होता है। तो इससे ऑप्शन नंबर सी आता है। 119, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 4 ग्राम मीथेन। 4 ग्राम मीथेन जो है दैट इज डिवाइडेड बाय 16 करें, तो ये 0.25 मोल्स आ गए। 0.25 मोल्स आ गए। अच्छा, 1 मोल मीथेन में 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो 0.25 में 4 into 0.25 is equal to 1. So you will get 1 mole of 1 mole. 1 mole mean Avogadro number. That is Avogadro number of hydrogen atom. D option is correct. असल की the molar mass 16 देगा ना, तो 4 को 16 पर डिवाइड, तो इसके नंबर ऑफ मोल 4 टाइम कम हो गए ना। लेकिन आपको ये पता है कि 1 मोल मीथेन में 4 टाइम्स ज्यादा हाइड्रोजन होते। एक साइड पर हमने मोल 4 टाइम कम किए, लेकिन दूसरी साइड पर 4 मोल हाइड्रोजन 4 टाइम्स ज्यादा है, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। सो 0.25 मोल ऑफ मीथेन विल हैव 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और 1 मोल में कितने एटम होते हैं? Na। समझ आ गई बेटा? अच्छा, इसमें जरा क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड था, आप जरा देखें। What modification this question requires? पता कि सब modification रखा है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, बस ठीक है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। ये मिटाओ बेटा। Question number 120, 4 mole of aluminium plus 3 moles of oxygen and produce 2Al2O3, कहता है equal masses। तो सुने, लिमिटिंग रिएजेंट के मालूम करने का तरीका ये होता है कि आप पहले उससे मोल्स बनाएं। क्या बनाएं? मोल्स बनाएं। कैसे मोल बनाएं? मैं कहता हूं लेट सपोज एल्यूमिनियम इज x ग्राम, एल्यूमिनियम इज x ग्राम, और ऑक्सीजन शुड बी हाउ मच ग्राम? नो, ही इज in question he has already mentioned that you have taken equal masses. So what will be the mass of oxygen? That is also x gram, right? What is convert it into moles? So divided by 27 and divided it by 32, right? Now you have obtained number of moles. What is the next job to do? The next job is divide this number of mole on coefficient of aluminium. So multiply it by 4. Understand? And this 32 multiplied by 3. Number of moles को आपने coefficient के ऊपर क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा।
पहले मासिस को किस में कन्वर्ट करें? मोल में। कैसे मोल मालूम करेंगे? मासिस को एटॉमिक मासिस पर या मॉलिक्यूलर मासिस पर डिवाइड करना होगा, फिर कोएफिशिएंट के ऊपर फिर डिवाइड करना है दोबारा, तो जिससे कम जवाब आएगा, जिससे कम जवाब आएगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इससे कम जवाब आता है, तो एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। 121 हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट? तो देखो कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन है और इसमें 10 वाटर है, तो 13, तो 1 मोल में 13। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आर इन 1 मोल? 13 मोल। अच्छा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, एक बात याद रखिए, ये बात जो कहा हम बच्चों से ये कॉमन नेम पूछते हैं कि व्हाट इज दिस फार्मूला रिप्रेजेंट्स विच कंपाउंड, तो इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। ये तो सही, वॉशिंग सोडा। और इसके साथ जब पानी ना हो तो फिर इसको सोडा एश कहते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसको बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा। ये आटे गूंदने के वक्त आटे में हम डालते हैं, इससे रोटी नरम आ जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। ये तो सही, कास्टिक सोडा। अच्छा, 122 द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 24 ग्राम ऑफ ओजोन। तो देखो ओजोन का मोलर मास जो है ना वो 48 होता है, तो 24 मीन हाफ मोल, इट इज हाफ मोल। तो हाफ मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 11.2। 123 1 AMU ये ग्राम में बी के बराबर होता है और किलोग्राम में सी के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 124 अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी PCl3 हैज 1 लोन पेयर, इसका शेप डायगोनल पिरामिडल ए होगा। इसके साथ एक चीज ये भी याद रखें कि हाइड्रोनियम आयन का शेप भी इस तरह होता है। अच्छा, हाइड्रोनियम आयन। 125 the region around the nucleus where the electron is found is called orbital. Now 26 the limiting reagent is the one which is consumed completely during reaction. समझ आ गई बेटा? बस अब तो टाइम कम है, तो हम आपको दुआएं देंगे और आप हमें दुआएं देते रहें और अपने स्टडी पर फोकस करें, टाइम ज़ाया मत करें।